اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں آپ کا نام آئے تو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں۔ قدیم زمانے میں پہاڑوں، دریاؤں اور سرسبز میدانوں کے درمیان ایک پرسکون اور خوشحال ریاست آباد تھی۔ اس ریاست کے بادشاہ اپنی نرمی، انصاف اور محبت بھرے مزاج کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھے۔ محل سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا، جس کی بلند کھڑکیوں سے صبح کی روشنی اندر آتی تو پورا محل سنہری دکھائی دیتا۔ ریاست کے لوگ اپنے بادشاہ سے بے حد محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ رایا کے دیکسک کا خیال رکھتے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ کی سب سے بڑی خوشی ان کی 8 بیٹیاں تھیں۔ یہ 8 شہزادیاں نہایت خوبصورت، معصوم اور نرم دل تھیں۔ محل میں ہر طرف انہی کی ہنسی گونجتی رہتی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ شہزادیوں کے نام اقصی، عائزہ، زوہا، ایمان، سمیہ، حفصہ، زنیرہ اور حورین تھے۔ 8 بہنیں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ اگرچہ ہر ایک کی طبیعت مختلف تھی، مگر ان کے دل ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ نرم رہتے تھے۔ 8 شہزادیاں ابھی بہت چھوٹی تھیں۔ ان کی عمر زیادہ نہیں تھی اور وہ سارا دن محل میں کھیلتی کودتی رہتی تھیں۔ اقصی نہایت نرم مزاج اور خاموش طبیعت کی بچی تھی۔ عائزہ ہر وقت ہنستی رہتی اور اپنی بہنوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش کر دیتی۔ زوہا کو باغ کے پھول بہت پسند تھے اور وہ اکثر مالی کے ساتھ باغ میں گھومتی رہتی۔ ایمان ہر زخمی پرندے اور چھوٹے جانور کا خیال رکھتی۔ سمیہ کو بارش اور پانی سے کھیلنا پسند تھا۔ حفصہ تصویروں والی کتابیں دیکھتی رہتی۔ زنیرہ کم بولتی مگر ہر بات غور سے سنتی تھی۔ محل کے قریب ایک وسیع استبل تھا جہاں 8 چھوٹے گھوڑے رکھے گئے تھے۔ یہ عام گھوڑے نہیں تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور ان کی چال میں غیر معمولی نرمی تھی۔ بادشاہ نے یہ گھوڑے خاص طور پر اپنی بیٹیوں کے لیے منگوائے تھے، کیونکہ شہزادیاں بچپن ہی سے گھوڑوں سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ وہ گھوڑے بڑے نہیں تھے بلکہ نہایت خوبصورت اور چھوٹے قد کے تھے۔ ان کے نرم بال دھوپ میں چمکتے تھے۔ کہ گھوڑے کا رنگ سفید تھا، عائزہ کے گھوڑے کا ہلکا سنہری، زوہا کے گھوڑے کا چاندی جیسا، ایمان کے گھوڑے کا خاکی، سمیہ کے گھوڑے کا گہرا بھورا، حفصہ کے گھوڑے کا ہلکا سرمئی، زنیرہ کے گھوڑے کا سیاہ اور حورین کے گھوڑے کا رنگ برف جیسا چمکتا ہوا تھا۔ شہزادیاں صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے انہی گھوڑوں کے پاس جاتے۔ وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، ان کے بال سنوارتے اور ان کے ساتھ باغوں میں دوڑتی پھرتی۔ محل کے ملازم اکثر حیران ہوتے کہ یہ گھوڑے شہزادیوں کی آواز سنتے ہی کس طرح خوش ہو جاتے ہیں۔ وقت نہایت خوشی سے گزر رہا تھا۔ محل میں ہر روز مسکراہٹیں بکھری رہتی۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں کے لیے الگ سے کھانا کھانے بہت تیار شاندار ہونا کرواتے چاہیے تھے۔ میری شہزادیوں کے لیے۔ اسے بہت احتیاط سے پکا رہی ہوں حضور۔ اور گھوڑوں کے لیے بھی ہماری خاص شہزادیوں خوراک کے گھوڑوں بنتی کے تھی لیے بھی تاکہ وہ کھانا صحت مند رہیں۔ بہترین ہونا چاہیے۔ جیسا آپ کا حکم حضور۔ ایک دن محل میں بہت مصروفیت تھی۔ دور دراز کے مہمان آنے والے تھے۔ باورچی خانے میں ملازم تیزی سے کام کر رہے تھے۔ شہزادیوں کے لیے نرم اور مزیدار کھانا تیار کیا جا رہا تھا، جبکہ گھوڑوں کے لیے خاص جڑی بوٹیوں سے بنی غذا الگ رکھی گئی تھی۔ اسی جلد بازی میں ایک نوکرانی سے غلطی ہو گئی۔ گھوڑوں کی خوراک میں موجود ایک چمچ خاص مرکب شہزادیوں کے کھانے میں شامل ہو گیا۔ کسی کو اس بات کا علم نہ ہوا۔ شام کے وقت 8 بہنیں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگیں۔ وہ ہنس رہی تھیں اور دن بھر کی باتیں ایک دوسرے کو سنا رہی تھیں۔ کسی نے بھی یہ آج محسوس نہ گھوڑوں کے کیا ساتھ کتنا کہ مزہ کھانے آیا۔ میں کچھ ہاں، مختلف ہے۔ بہت مزہ آیا۔ دیکھو تو یہ کتنا خوبصورت ہے۔ ہاں، یہ مزیدار لگتا ہے۔ چلو اور کھاؤ۔ یہ کیسا بنا ہے؟ بہت اچھا۔ رات گہری ہوئی تو اچانک اقصی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ باقی بہنیں بھی کمزور محسوس کرنے لگیں۔ ان کے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے اور جسم میں عجیب سی برفیلی کیفیت اترتی گئی۔ محل میں خوف پھیل گیا۔ بادشاہ اور ملکہ پریشان ہو گئے۔
फौरन रियासत के बड़े हकीमों और तबीबों को बुलाया गया। सबने शहजादियों का मायना किया, मगर कोई बीमारी समझ न सका। दिन गुजरते गए, मगर शहजादियों की हालत बेहतर न हुई। उनके हाथों में अजीब सी सर्दी पैदा हो गई थी। एक दिन एक मुलाजमा ने गलती से अक्सी के हाथ को छुआ तो उसके कपड़ों पर बर्फ जम गई। सब खौफजदा हो गए। अब महल में हर शख्स एहतियात से रहने लगा। शहजादियां खुद भी खौफ में मुब्तला हो गईं। वो किसी चीज को छूने से डरती थी। अगर उनका हाथ किसी चीज पर पड़ता तो वो चीज आहिस्ता आहिस्ता बर्फ जैसी ठंडी हो जाती। बादशाह रातों को जागते रहते। मलका अपनी बेटियों के सरों पर हाथ रखकर रोती रहती, मगर किसी के पास इस मुसीबत का हल न था। एक रात आसमान गैर मामूली तौर पर रोशन था। चांद की रोशनी महल की दीवारों पर फैल रही थी। एक सफेद रोशनी महल के बाग में उतरी। वो एक परी थी। इसके लिबास पर चांदी जैसी रोशनी चमक रही थी और उसकी आंखों में अजीब सुकून था। परी ने खामोशी से शहजादियों को देखा। फिर उसने बादशाह से कहा कि ये बीमारी आम नहीं। घोड़ों की खुराक में मौजूद जादुई असर गलती से उनके जिस्म में चला गया है। अब उनके अंदर बर्फ की ताकत पैदा हो चुकी है। परी ने बताया कि अगर शहजादियां इसी तरह महल में रहें तो आहिस्ता आहिस्ता हर वो चीज बर्फ में बदल जाएगी जिसे वो छुएंगी। बादशाह ये सुनकर टूट गए। मलका की आंखों में आंसू भर आए। परी ने नर्म लहजे में कहा कि वो शहजादियों को अपनी दुनिया में ले जा सकती है, जहां उनकी हिफाजत होगी और कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बादशाह और मलका के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था, मगर अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए उन्होंने इजाज़त दे दी। अगली सुबह आठों शहजादियां महल के बाग में खड़ी थीं। वो खौफजदा भी थीं और उदास भी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने घर को क्यों छोड़ रही हैं। परी ने अपने हाथ बुलंद किए तो हवा में चांदी जैसी रोशनी फैल गई। आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर एक रोशन रास्ता नमूदार हुआ। आठों शहजादियां एक दूसरे का हाथ थामे इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। मलका ने उन्हें आखिरी बार गले लगाना चाहा, मगर डर की वजह से खुद को रोक लिया। यही लम्हा सबसे ज्यादा तकलीफदेह था। फिर वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ बुलंद हुई और शहजादियां परी के साथ एक दूसरी दुनिया में चली गई। वो दुनिया बर्फानी नहीं बल्कि निहायत खूबसूरत थी। वहां नीले झरने थे, चमकते हुए दरख्त थे और नर्म रोशनी में नहाए मैदान थे। हवा में फूलों की खुशबू रहती थी और रात के वक्त सितारे बहुत करीब महसूस होते थे। परी ने शहजादियों के लिए एक शफाफ महल बनाया हुआ था। वहां सब कुछ सुकून से भरा था। शुरू शुरू में शहजादियां खामोश रहती थीं। वह अक्सर अपने वालिदैन को याद करके उदास हो जाते। उन्हें अपने महल के बाग, अपने कमरे और अपने घोड़े याद आते। परी उनका बहुत ख्याल रखती थी। वो उन्हें जादुई दुनिया के उसूल समझाती और उन्हें ये सिखाती कि अपनी बुरफैली ताकत को कैसे काबू में रखना है। साल गुजरते गए। छोटी शहजादियां जवान होने लगे। उनके चेहरों पर पहले से ज्यादा खूबसूरती आ गई। उनकी आंखों में सुकून भी था और एक मुस्तकिल उदासी भी। वे अक्सर रात के वक्त आसमान की तरफ देखते और सोचते कि उनके वालिदीन अब कैसे होंगे। अगरचा परी की दुनिया महफूज थी, मगर दिल के अंदर एक खला बाकी था। अक्सा कभी कभी सब बहनों को साथ बैठाकर पुरानी बातें याद दिलाती। वो अपने बचपन के बागों, महल के सहन और अपने घोड़ों का जिक्र करती तो सब खामोश हो जाते। एक दिन हुरीन ने आहिस्ता से पूछा कि क्या वो कभी वापस जा सकेंगी। सबके दिलों में यही सवाल था। परी ने उन्हें हमेशा यही समझाया था कि जब तक उनके अंदर की बर्फीली ताकत खत्म नहीं होती, वो इंसानी दुनिया में वापस नहीं जा सकती। मगर वक्त के साथ साथ उनके दिलों में उम्मीद बढ़ती गई। एक रात अजीब वाकया पेश आया। आठों बहनें अपने कमरों में सो रही थीं। सुबह जब वो बेदार हुए तो हर एक के बस्त्र के पास एक चमकता हुआ हाथ नमा निशान मौजूद था। वो किसी बुरफानी रोशनी से बना हुआ लगता था। वो निशान आहिस्ता आहिस्ता एक छोटी सी तहरीर में बदल गया। इसमें 3 ख्वाहिशों का जिक्र था। इसमें लिखा था कि शहजादियां अपनी कोई भी 3 ख्वाहिशात पूरी कर सकती हैं। शहजादियां हैरान रह गईं। ने सब बहनों को साथ खड़ा किया। एक बहन ने ये ख्वाहिश की कि हमें एक सफ़ेद उल्लू चाहिए जो हमें अपनी दुनिया का रास्ता तलाश करने में मदद करे। दूसरी बहन ने ख्वाहिश की कि हमें एक जादुई कालीन चाहिए। तीसरी बहन ने ख्वाहिश की कि हमारे अंदर मौजूद बर्फीली ताकत खत्म हो जाए। जैसे ही उन्होंने दुआ की,
फिर उनके सामने एक खूबसूरत कालीन नमूदार हुआ। उसके किनारों पर चांदी के धागे थे। इसी वक्त एक सफेद उल्लू खिड़की पर आ बैठा, पर इस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। शहजादियां खामोशी से कालीन पर खड़ी हो गईं। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। कालीन आहिस्ता आहिस्ता हुआ में बुलंद हुआ और सितारों के दरमियान से गुजरता हुआ इंसानी दुनिया की तरफ बढ़ने लगा। कुछ वक्त बाद वो अपनी रियासत के करीब पहुंच गई थी। रियासत बदल चुकी थी, मगर महल अब भी वैसा ही था। दीवारों पर वक्त के असरात जरूर आ गए थे, मगर उसकी शान बाकी थी। जब शहजादियां महल के करीब उतरे तो उनके दिल भर आए। महल के बाग पहले से ज्यादा खामोश थे। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए। मलका अपनी बेटियों की याद में हर वक्त रहती, और बादशाह किसी लम्हे भी अपनी बेटियों की याद से गाफिल नहीं होता। जब उन्होंने अपनी बेटियों को देखा तो पहले यकीन ना आया, फिर पूरा महल खुशी से भर गया। मलका ने अपनी बेटियों को गले लगाया। इस बार कोई खौफ नहीं था। शहजादियां अपने वालिदीन के करीब बैठ गईं। बरसों की जुदाई एक लम्हे में आंसुओं में बह गई। रियासत के लोग भी अपनी शहजादियों की वापसी पर खुश थे, मगर इसी दौरान एक अजीब बात सामने आई। शहजादियों ने अपने घोड़ों के बारे में पूछा तो बादशाह ने कहा कि वो घोड़े तुम लोगों के जाने के बाद कहीं गायब हो गए थे। ये सुनकर शहजादियां बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि उन्हें अभी भी वो घोड़े याद थे। चंद दिन बाद रियासत के करीब 8 नौजवान आए। वो गैर मामूली हद तक खूबसूरत और पुरस्कौन थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जब शहजादियों ने उन्हें देखा तो उन्हें फौरन एक मानूस एहसास हुआ। ये वही घोड़े थे जो बरसों पहले घोड़ों की शक्ल में शहजादियों के साथ रहते थे। वक्त के साथ साथ वो अपनी असल इंसानी शक्ल में वापस आ गए थे। इन नौजवानों ने भी शहजादियों को बरसों तलाश किया था। जब उन्हें मालूम हुआ कि शहजादियां दूसरी दुनिया में हैं, तो वो इस दुनिया में चले गए और उन्हें तलाश करने लगे। इन शहजादियों की वो 3 अच्छा पूरी करने वाले यही नौजवान थे। उन नौजवान शहजादों को इन शहजादियों से बहुत मानूसियत हो गई थी। हर शहजादे का ताल्लुक एक शहजादी से था। रियासत में दोबारा खुशी लौट आई। शहजादियां पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार हो चुकी थीं। उन्होंने जुदाई, खौफ और तन्हाई सब कुछ देखा था। परी कभी कभी दौर आसमान से उन्हें देखती। उसे खुशी होती कि शहजादियां अब महफूज और खुश हैं।